पेश है गुड मॉर्निंग J&K। صبح بخیر ناظرین السلام علیکم پروگرام گڈ مارننگ J&K کس أزکِس نشستس مز تۄہہِ سارنٕے وٕچھن والٮ۪ن ہُنٛد استقبال تہٕ خیر مقدم امید یہِ کہ تُہۍ سٲری ٲسِو صحت سلامت تہٕ خیر عافیت سان تہٕ مزید دعا رب العالمین سٕنٛدِس بارگاہس منٛز یُس رحیٖم چھُ یُس رحمان چھُ کہ سٲنۍ سٲری معاملات ٲسِن سہل تہٕ آسان زندگی منٛز ناظرین یہِ پروگرام گڈ مارننگ J&K یس چھِ زٕ حصہٕ اکھ حصہٕ یُس ییٚمیُک ظہوٗر گژھان اظہار گژھان گوٚو سانہِ ٹیٖمٕچ محنت سٲنۍ کوٗشش سٲنۍ کٲوِش یۄس تۄہہِ تام واتان چھِ تہٕ بیٛاکھ اکھ حصہٕ چھُ یُس پوشیٖدٕ چھُ آسان یُس مُخفی چھُ آسان سُہ گوٚو ناظریٖن تُہُنٛد ساتھ یُس یہِ تعلق چھُ پانہٕ ؤنۍ اکھ ظہوٗر تہٕ بیٛاکھ پوشیٖدٕ آسُن یہِ چھُ تیُتھُے تعلق یُتھ تعلق أکِس گۄلابس مُشکس سۭتۍ چھُ یُس تعلق أکِس آفتابس تمہِ چہِ توانٲیی سۭتۍ چھُ یُس تعلق فضاہس منٛز ہوہس چھُ یِتھ کٔنۍ ہوا پوشیٖد چھُ آسان یِتھ کٔنۍ مُشک پوشیٖد چھُ آسان گۄلابس یِتھ کٔنۍ توانٲیی پوشیٖد چھِ آسان یِتھے کٔنۍ چھِو ناظریٖن تُہۍ تہِ پوشیٖدٕ مگر تس گۄلابس کیٛاہ شوٗب یتھ نہٕ مُشک آسہِ کِہینۍ تہٕ تتھ آفتابس کیٛاہ وٕکت یتھ نہٕ توانٲیی آسہِ تہٕ تمہِ فضہٕچ کیٛاہ ضروٗرت یتھ منٛز نہٕ ہوا آسہِ کِہینۍ تہٕ ناظریٖن سٲنۍ تہِ کیٛاہ ضروٗرت سٲنۍ تہِ کیٛاہ وٕکت تہٕ سٲنۍ تہِ کیٛاہ شوٗب تہٕ لوٗب توٚتتھ تام یوٚتتھ تام نہٕ تُہُنٛد محبت آسہِ تُہٕنٛز راے آسان اسہِ سۭتۍ یِم سٲری چیٖز ہیٚکِو تُہۍ سٲنِس یۄس یہِ یوٗٹیوٗب چینل چھِ DD کٔشیٖر ہِنٛد یۄس لایِو سٹریٖم چھِ گژھان تتھ پٮ۪ٹھ پننیو کومنٹو ذٔریعہٕ اسہِ تام واتنٲیِتھ ناظریٖن تۄہہِ چھُ امہِ معلوٗم کہِ امہِ باوجوٗد چھُ یُس یہِ پروگرام دوٗردرشن چہِ DD کٲشِر چہِ چینلہِ پٮ۪ٹھ 8 بجہِ پٮ۪ٹھ 9 بجن تام ہر دۄہ براہ راست پیش گژھان أزکِس یتھ پروگرامس منٛز چھُ شرفہِ میزبٲنی حٲصِل اسہِ بہٕ نیاز بٹ تہٕ مےٚ سۭتۍ نفیسہ السلام علیکم وعلیکم السلام نیاز بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک الحمدللہ بس الحمدللہ ناظرین میری طرف سے بھی ایک پیار اور خلوص بھرا سلام قبول کر لیجئے السلام علیکم ناظرین امید یہی ہے کہ آپ سبھی دیکھنے والے ہمیں جہاں کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں اپنی صحت کا پورا خیال رکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد کے ماحول کا بھی پورا خیال رکھ رہے ہیں اور ہمیں مجھے اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھ رہے ہیں ناظرین آپ کو شروعات میں ہی انتظار ہوتا ہے موسم اور ٹریفک کے حوالے سے جو اپڈیٹ ہوتے ہیں سو بنا کسی دیر کے آپ سب سے پہلے آپ تک موسم کی جانکاری پہنچاتے ہیں تو موسم کی اگر بات کریں تو سری نگر میں آج موسم جو ہے خشک رہنے کی امید ہے تو درجہ حرارت کی بات کریں تو سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سیلسیس کے ارد گرد رہنے کی امید ہے وہیں اگر جموں کی بات کریں تو جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21 ڈگری سیلسیس کے ارد گرد رہنے کی امید ہے وہیں ہم ٹریفک کے حوالے سے بات کریں تو سری نگر جموں نیشنل ہائی وے NH44 پر آج چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی وہیں بڑی گاڑیوں کو جو ہے سری نگر سے جموں کی اور روانہ کیا جائے گا سری نگر سنمرگ گمری روڈ کی اگر بات کریں تو سری نگر سنمرگ گمری روڈ پر ٹریفک کو جو ہے دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ہوگی چھوٹی بڑی دونوں گاڑیوں کو اور مغل روڈ کی بات کریں تو مغل روڈ پر یک طرفہ ٹریفک پونچھ سے سری نگر کی اور روانہ کیا جائے گا لیکن جو یہ اپڈیٹ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں یہ تو ہم تک پہنچے ہوتے ہیں لیکن اس میں ایک ٹائمنگ کا کٹ آف ٹائمنگ رہتا ہے کہ کتنے بجے سے کتنے بجے تک جو ہے سری نگر سے جموں یا چھوٹی گاڑیاں کتنے بجے سے کتنے بجے تک بڑی گاڑیاں کتنے بجے سے کتنے بجے تک آ جا سکتی ہے تو وہ جو
मालूमात है उनको आप मजीद जानने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के इन नंबरात पर जो है राबता ज़रूर कायम करें ताकि आपको जो है पल पल की अपडेट्स मिलते रहे। जी नियाज़ या भाई। इसके बगैर नफीसा इनकी ट्विटर हैंडल्स है, बिल्कुल वहाँ से या भी जो जानकारी। फेसबुक पेज है नाज़रीन उस पर भी आप जान सकते हैं कि बाज़ वक्त ऐसा होता है कि फ़ोन छिनिम तुलान कहीं कि फ़ोन नंबर से सेटअप बिजी आसान कि तम सहल तरीक आज डिजिटल टेक्नोलॉजी। बिल्कुल वो तो है, मगर एक चीज मैंने नोटिस किया कि फोन हमेशा उठाता है, ऐसा कभी नहीं होता है, फोन उठाते हैं लेकिन इजी रहता है, कहीं कभी नेटवर्क नहीं होगा, आप नेटवर्क एरिया से कहीं बाहर आप हो उस सकते इलाके हैं। में हो फोन ना लगे। वैसे तो ट्विटर हैंडल तिछु या फेसबुक पेज तम पे तो मालूम। नफीसा मुझे एक बात याद आ रही थी ऐसे कि जब हम एजुकेशन की बात करें तो आज कुछ मोल मोज पन्निस बच्चस एजुकेशन दिवान आला तालीम दिवान असल स्कूलन एडमिशन करनावान वगैरह, मगर युस चीज मिसिंग अजकिस जमानस मज दौर हाजिरस मज सह लाइफ स्किल। बिल्कुल बेसिक लाइफ स्किल मतलब बच्चा 8th पारान, बच्चा 9th पारान या ये बची 9th पारान, अम सिंदिस फिराकस या अम सिंदिस पेंटस प्रेस मोल करान। बच्चा 10th पारान, अमिस वन फीत तगान गंडुन कहीं तह, दरहाल कि अमिस एजुकेशनली ठीक ग्रेड्स नफीसा ठीक, मगर अमिस बेसिक लाइफ स्किल अमिस पई अगर न गरस मज मोल मोज कहीं, मिसाल आज दोनवे वर्किंग यह फाके रोजान, यह पानस खतर कह गरम तहकान कर तैयार करन गए दूर कत, मगर यह गरम कर। आपको क्या लगता है इस बारे में, क्या ये मिसिंग है या पहले जो था जमाना हमारे माँ बाप उनमें लाइफ स्किल्स ज्यादा थे? बिल्कुल ये बहुत मिसिंग है, क्योंकि मैं एक मतलब बच्चा जो है डिपेंडेंट बनता जा रहा है। ये पढ़ाई मतलब माँ बाप भी बोलते हैं कि चलो मैं उन बच्चों करान कि चुन परवाई ये जिंदगी मज ब्रोह पकुन, मगर जिंदगी मज हेक न ब्रोह सिर्फ पढ़ाई से पकित किया। हमें दोनों चीजों में बैलेंस रखना है। जब बच्चा अपने लिए कुछ करेगा तभी वो दूसरों के लिए कुछ कर सकता है। सिर्फ वो पढ़ाई हासिल करेगा, करियर में आगे बढ़ेगा, लेकिन उसे खाना नहीं आ रहा होगा, मतलब खाना हाथ तक पहुंचे, मतलब लिटरली आपराम तो सुताई कहीं खोन बे स्पेशली अख चीज यस बेतस ऐड करूं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, हमारी माएँ क्या करती है, बच्चा छोटा है, उनको तो हमेशा वो छोटे ही लगते हैं, 5 साल 6 साल का भी हो गया, तुम छासान आपरावान ये छिन बच्चे पन्ने अच्छे दीवान ख्यान किया यो तय सब गलती कर दौरित सिन 1-2 साल में सीख जाएगा। नेबरमन मुल्कन मज क्या करान दौद छुरी छासान तिमन ब्रोह दिवान इत पे मांडान आसान खेवान तो 1-2 साल में सीख जाते हैं। ये 5 वर्ष वो 10 वोर बचते तमिस मोज आसान आपरावान। तो इसके अलावा बाकी तो लाइफ स्किल्स बाद में सिखाने ही है, लेकिन सबसे पहले बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है खाने में, हर चीज में वो अपने काम छोटे काम उनसे कराने हैं। उठो अपना कप उठाओ, अपना पानी का गिलास मेरे लिए लाया वगैरह ये लकट लकट चीज अगर हम हेचनो बे युथी पत नफीसा प्रैक्टिकलिटी ऑफ इस वर्ल्ड यह बिल्कुल डिफरेंट सानियों किताबों नश किताबन मज पारान या वगैरह पारान तम नश बिल्कुल मुख्तलिफ चीज आसान जिंदगी मज वुन। यम चीज तेल नाजरीन पॉसिबल यह बच्चे हेकि तेल हेचित तेल बन अम सं शख्सियत मुकम्मल शख्सियत युस तुई हकीकी मानवन मज यथान आसान दिलस मज, मगर तिम चीज छो तुई प्रैक्टिकली करान कहीं, तथ खतर जरूरी कि तिम हेचनावोक तिम सारी चीज, मिसाल पे पानस सत कड़ोक बाजार तो बाजार वुचो तिम वुचन कि खरीद फरोख्त तरीक क्या खरीद फरोख्त कित कन कर पत हेचन तिम तम सत मैनेजमेंट फिनेंशियल मैनेजमेंट हेकन हेचित। अगर तिमन चीज दिमो तिमन दबो डिस्ट्रीब्यूट करू पन्न मतलब अस मस्जिद मज रमजान तथ मज तुलोक पानस तुई करू डिस्ट्रीब्यूट, तिम हेचन सोशल मैनेजमेंट वारिया तिम चीज सठा जरूरी आसान। अगर नफीसा आप देखोगे जो कामयाब शख्सियत हमारे इर्द गिर्द है जिन्होंने बहुत नाम कमाया है, अगर उनकी तालीमी आप ये देखोगे ना बैकग्राउंड वो बिल्कुल आम है जैसे आपका और हमारा, लेकिन उनका जो बाकी कोफिशेंट्स है उस मिसाल के तौर पर सोशल कोफिशेंट उस इमोशनल कोफिशेंट उस एडवर्सिटी कोफिशेंट यम 4-5 कोफिशेंट तिमन सठा हाई यमिस पत खाली इंटेलिजेंट कोफिशेंट सह तमिस पत मुलाजिम ठीक है, वो उसका मुलाजिम होता है और वो उसका कारखानदार होता है या मालिक होता है। खैर बातें बहुत हुई, आज कोई सौगात हम पेश करेंगे कि बस हम बातें करते हैं। नाज़रीन आपको इंतजार होगा, आपके लिए जो है हमने सौगात का जो है उसका भी इंतजाम करके रखा है। एक खूबसूरत सा नगमा डॉक्टर शाइस्ता अहमद की आवाज में आपके लिए पेश करते हैं। क्या क्या करूं जाने
नाज़रीन तो वुचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK कमेंट्स हम सेक्शन में जब हम जाते तो एक कमेंट है माविन परवेज जी लिखते हैं कि अम पे पे में नफीसा प्रॉब्लम याद कि ये लिखते हैं माविन पर नियाज भाई अ डे बिफोर यस्टरडे आई वाज रिटर्निंग होम फ्रॉम श्रीनगर हाउ मच ट्रैफिक मेस वाज देयर एट निशाद गार्डन ऑनेस्टली स्पीकिंग इट टुक मी आवर टू गेट आउट ऑफ अ ट्रैफिक जैम। ये बिल्कुल हकीकत, चूंकि ईद का जो चर्चा अभी चल ही रहा है तो निशात शालीमार वगैरह में बहुत भीड़ रहती है। नफीसा आप गए? मैं यही आपसे पूछने वाली थी, मैं तो नहीं गई, मैं यही पूछने वाली थी कि आप तो निशात से रहते हैं तो कैसा था वहाँ ईद में चर्चा, क्या क्या? निशात का मैस ऐसा है कि हर छोटा बड़ा नाजरीन हर लॉकआउट बोर्ड निशात बाग विंकस वोतमुत या शालीमार या चश्मे शाही अल्लाह ताला ने तस इलाकस सठा फजीलत बख्शमुत मुगल गार्डन खूबसूरत सठा खूबसूरत इलाक मगर अख प्रॉब्लम वंकस आगो ट्रैफिक मैस सठा गसान घंटे वत लगान खैर तथ क्या करो रोड वंकस इंफ्रास्ट्रक्चर लगुट मगर ब्या प्रॉब्लम फोरशो रोड पे लड़के स्टंट्स करते हैं। लड़के क्या लड़के लड़कियां अब स्टंट करते थे। आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले सिर्फ लड़के स्टंट करा। कल मैं शाम को ऐसी टहलने के लिए निकल गया तो मैं देख रहा हूँ लड़कियां स्कूटी पे ऐसे मतलब जबरदस्त स्टंट कराएं, व्हीली कराएं, ऐसे घूम घूम के वो चलाते हैं। तो इसके लिए नाज़रीन गुजारिश है कि अपने बच्चों को, क्योंकि ये जवानी उम्र आत्मन की हिद्दत आसन शिद्दत आसन कितना भी इनको समझाए लेकिन ये दो कान रखते, एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकालते हैं। मुझे तो लगता है एक कान से सुनकर उसी कान से ही निकालते, सुनते हैं नहीं। तो तिमन बायन तिमन लगतन बेनन सन ये गुजारिश पन्ने सेहतुक थयु ख्याल, पन्ने जूक थयु ख्याल। ये जू आसान सठा कीमती, अत मज इंसानस कुन ति विज अगर मामूली लग्जिश या मामूली खता और योर रूद जहन खुदा रचिन कह तुथ हादस गस यथ मन जान तो मालुक नुकसान गस तो तुम पेरेंट्स या गार्डियन तुह तह पज थवन एतदाल सान यम चीज दिन पे नजर थवन कित कन चलावान युंद रवैया वुचुन। चूंकि जब ये स्टंट्स करते इंसान का दिल उस वक्त खौफ ज़दा होता है, बिल्कुल खौफ होता है कि जिस तरह ये स्टंट्स करते। गुजारिश हेलमेट बगैर आसान इस वक्त तो इन्हें मजा आता है, लगता है हम बच्चे हैं, जवानी के दिन है, मजा करेंगे, फ्रेंड्स को दिखाने में कुछ अलग ही जोश इनको लगता है, लेकिन इनको नहीं पता कि ना ये इनके लिए अच्छा है ना ये इनकी फैमिली के लिए अच्छा है। गुजारिश करते अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा,
اپنے ماں باپ کو اپنے ذہنوں میں رکھیے گا, اس محبت کو یاد کریے گا, ٹھیک ہے. لیکن پروگرام میں ہم آگے بڑھائیں گے. ہم پروگرام میں وقت ہوتا ہے ہم کو مہمان سے ملاقات کا, لیکن تھوڑا سا کرنا پڑے گا آپ کو انتظار. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے ہم, اس کے بعد فوراً بعد آپ کی ملاقات کرائیں گے آج کے معزز مہمان سے. ملتے ہیں اس چھوٹے سے وقفے کے بعد. وادیو ناور جیولری دکان, یور جیولرز دا پرائڈ آف شہری خاص. یہ ملاوٹ ورائے سون بہترین ڈیزائنن میں دستیاب چھو, خاص کر مناسب قیمتس پہ. تشریف انیو یور جیولرز, قاری کدل, سراف کدل, نالیما روڈ, سری نگر. سیل نمبر 9541176450. ناظرین تھی وچان پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے, تو وقت ووت مہمان ست ملاقات. وقتاً فوقتاً تمن مہمانن تمن شخصیتن یور دعوت دیوان یم یمی وادی کشیر ہند ماج کشیر ہند مخت مال ہند مخت آسان, یمو پنن پنن فیلڈن مز اخ روشن مستقبل حاصل کورمت, سٹھا کم کرمز. تمن ست کت بات کری تہند ذاتی مشاہدہ تمہ سہ ہچان تو تھی تہ ہچان. ناظرین ازک یم مہمان اس تشریف فرما تم پریزیڈنٹ ہوٹلیئر کلب جموں اینڈ کشمیر, چین آف ہوٹل, اخ مشہور معروف پرسنالٹی جناب مشتاق احمد چایا. السلام علیکم. السلام علیکم ناہید صاحب, بہت شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ رقم الفرصت ہونے کے باوجود بھی کہ ہم پروگرام میں مطلب شروع ہونے سے پہلے بات کر رہے کہ مشتاق صاحب کل ہی دلی سے آئے ہیں تو لیکن پروگرام میں کمٹمنٹ تھی آنے کی, تو اس لیے رقم الفرصت ہونے کے باوجود آپ یہاں تشریف ہے, اس کے لیے بہت بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کے. تو تمہید میں ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کا جو یہ سفر نامہ ہے مشتاق چایا کا, اس میں آپ تھوڑی سی وضاحت کریں کہ ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے, اور ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتہ تو ہے ہی بیشتر لوگوں کو, لیکن سیکھنے کو ہمیں تھوڑا ملے گا. دیکھیے بیسیکلی میں سری نگر کا رہنے والا ہوں. سری نگر میں ایک جگہ ہے سورا جی, جہاں میری پیدائش ہو گئی ہے. تو میں نے سورا میں ہی اسکول میں 5ویں جماعت تک پڑھا ہے. پھر وہاں ہمارا نزدیک زڈی بلا ہوا کرتا تھا جہاں 8ویں جماعت تک پڑھایا جاتا تھا. ٹھیک. دین میں ڈی اے وی اسکول میں گیا پڑھنے کے لیے. خیر وہ پڑھائی کی زندگی تھی. تو میری والد ان دنوں یہاں سب سے بڑی انڈسٹری فارسٹ انڈسٹری مانی جاتی تھی. ٹھیک. کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کشمیر تو جنگلوں سے, یہاں کی وادیوں سے, تو ان دنوں جنگلوں کا بڑا کہ بہت یہاں اس چیز کا व्यापार چلتا تھا جو سارے کنٹری میں سپلائی ہوتا تھا. وہ میرے والد فارسٹ لیسیز تھے. تو آئی آلسو جوائنڈ ہم, کیونکہ ان دنوں ہوتا تھا چلو بڑا بیٹا ہے اس کو اٹھاؤ لگاؤ اپنے کام میں, پڑھائی وڑائی چھوڑو, بہت ہو گیا, ہاں تو اس کو کیا کرنا ہے, کون سی نوکری کرنی ہے, کرنا تو اپنا ہی کام ہے. تو شروع وہاں سے ہو گئے. تو میں نے ان سے جوائن کیا. دکان تو تھی, تو اللہ کا فضل تھا تک اس میں اچھا ہی چلا. مگر 84 میں ہی وہ نیشنلائزیشن آف فارسٹ جو یہاں بہت بڑا ایک کہ نہیں جی اب گورنمنٹ خود ہی کرے گی, فارسٹ لیسیز وغیرہ بند ہو گئے. تو ہم نے ابھی تھوڑے ہی وقت میں ریٹائرمنٹ ہو گئی, مان لے لیجیے. پہلے کام کی ریٹائرمنٹ ہو گئی. تو 84 میں ہی کہیں ہمارا ایک آکشن تھا گلمرگ میں زمین کی, تو ہم نے بھی ایک پلاٹ لے لیا. تو آئی اسٹارٹڈ ون ہوٹل دیئر ان دا نیم آف, ابھی بھی ہے ہوٹل ہل ٹاپ. تو زندگی چلتی بنی, اس ہوٹل کو بنایا گیا. تو یہ شوقیہ نہیں تھا. تو آگے آپ کو پتہ ہی ہے. پھر بھی ایک پلاٹ ہم نے پہلگام میں خریدا جو اس وقت کے گورنر نے ایز اے 5 اسٹار ہوٹل بیچا, تو وہ بھی لے لیا 88 میں. تو 90 میں یہاں حالات خراب ہو گئے تو سارا بند ہو گیا, ناگزیر حالات. تو اب پھر دماغ میں آیا کیا کرا, کام تو کرنا ہے. والد صاحب بھی تو تھے کچھ, مگر تھے اصلی ایکسپرٹ ہم ٹمبر کے. تو ہم نے کہا چلو کہیں بھی تو اپنا بریڈ اینڈ بٹر کے لیے تو کام کرنا ہے. آئی اسٹارٹڈ فرام جموں اگین دس ٹمبر بزنس. اینڈ
اور ساتھ میں ہی پلائی ووڈ فیکٹری بھی چھوڑ دی. تو اللہ نے کامیابی ہی کامیابی دے دی. کامرانی دی، کامیابی دی. کامرانی اور کامیابی اسی کا فضل تھا. تو فائنلی دلی تک پہنچ گئے. تو اب ہمیں 2 ہی کام جانتے تھے، یا ٹمبر یا یہ چھوٹا سا ہوٹل ایک جو ہم نے بنایا تھا. تو یہی شوق ہمیں ہو گیا، چلو ہوٹل ہی شروع کریں. تو دلی سے ہی بنانے شروع کر دیے. تو 2002 میں وہاں آپ نے لیا ہوٹل بنایا، شروع کیا. پھر جموں میں ہوٹل بنایا. پلائی ووڈ فیکٹری آلریڈی جموں میں ہی بنائی تھی. بالکل. تو کاروان بڑھتا گیا، اللہ نے فضل ہی کامیابی دے دی. تو پھر یہاں شروع کر دیا. جیسا کہ آج کے دن میں ہم گرینڈ ممتاز چین تھی ہماری، اب کچھ ہم نے کنورٹ کر دیا، ریڈیسن برانڈ لائے ہیں. تو اللہ نے آج تک صرف کامیابی دے دی ہے. اللہ کا شکر ہے، فضل ہے. تو آج ہمارے پاس ایوری ویئر ہر جگہ ہوٹل ہے. آپ مشتاق چائے بھی ایک برانڈ ہے. مطلب چلیے ہم کیا ہے تو یہ اسی کی مہربانی ہے، اسی کا فضل ہے. اگر آج میں فضول خرچی کہاں دوستن یارن کران سہ کا مشتاق چائے کیا، مطلب اتنی مشہوری ہے آپ کی. ایسا تو کچھ نہیں ہے، مگر اللہ کا فضل ہے. تو آج کے دن یہاں ہمارے سری نگر میں ہے، گلمرگ میں ہے، پہلگام میں ہے، سنمرگ میں ہے، جموں میں ہے، ایون کٹرا میں ہے. کٹرا میں بھی ہے ہوٹل آپ کا. ٹھیک جی. دلی میں ہے. اللہ کا فضل ہی فضل ہے. تو مشتاق صاحب، آپ پریزیڈنٹ ہوٹلیئر کلب کے اس ٹائم پہ ہے جموں اینڈ کشمیر کے. تو ایز پریزیڈنٹ ہوٹلیئر کلب آپ کا کیا رول رہتا ہے، اور اس ہوٹلیئر کلب کا کیا رول رہ رہا ہے؟ دیکھیے، ہوٹلیئر کلب یہ جو ہوٹل والے ہیں، ہم آپس میں ایک برادری ہے. برادری میں ہم چنتے ہیں، چلو جی کسی کو سربراہ بنائے. تو اس میں مجھے انہوں نے چیئرمین بنایا ہے. ٹھیک. اس میں بہت سارے ہیں، اس میں وائس پریزیڈنٹس ہیں، جنرل سیکرٹریز ہیں، باقی آفس بیئررس ہے. تو ہوٹل والے ہم ایک دوسرے تو ایک ہی ہے، کوئی آپس میں تو افسری باتیں تو نہیں ہے. ایک برادری ہے کہ جو ہماری مشکلات ہیں تو اس میں ہمیں کہاں کہاں مشکلات آتے ہیں اور کس طرح حل کرے. کہیں گورنمنٹ کے پاس جانا پڑے، کہیں کسی کے پاس جانا پڑے. تو یہی ہمارے ہوٹلیئر کلب کا کام ہے. تو مگر ڈفیکلٹیز بہت ہوتی ہے. مثال کے طور پر کیا ڈفیکلٹیز ہے؟ اب چونکہ بزنس تو آپ کو پتہ ہی ہے، اور خاص کر وہ بھی ٹورزم کا، اور ہمارے ہاں حالات کا بھی پتہ ہے. فرام 89 آئی تھنک 2010-12 تک کچھ نہ تھا. تو بہت پریشانیاں تھیں. پھر جب شروع ہو گیا، پھر 1 سال ٹھیک، 1 سال خراب، 1 سال ٹھیک، 4 سال خراب. اب یہی آپ دیکھ لیجئے 14 سے جب یہاں سیلاب آ گیا، ابھی سوچا تھا کہ وہاں ہمارے لال چوک میں سیلاب آ جائے گا، ہمارے ہوٹل اس میں جائے گی، ہمارے دکان، ہمارے گھر. مگر ہوا 15 میں ٹھیک ہو گیا تو 16 میں پھر انریسٹ ہو گیا. 17-18 ہم ٹھیک کرتے رہے تو 19 میں پھر انریسٹ. ابھی انریسٹ ہی چل رہا تھا تو کووڈ آ گیا. تو بہرحال اللہ کا فضل ہے. پھر بھی سارے ہوٹل والے، اور اس میں ہوٹل جو مالک ہوتا ہے اس بیچارے کی اپنی ہی پرابلم نہیں ہے، اس کے ساتھ امپلائمنٹ بہت یہ امپلائمنٹ جنریشن ونکس ہب دیکھیے نا، کوئی بھی ہوٹل والا کتنا بھی چھوٹا ہو 10-20 لوگوں سے کام نہیں چلے گا. جو بڑا ہے کم از کم 200-250 300 لوگ ہیں ان کے پاس. ان کے تنخواہیں دینے، یہ پراپرٹی مینٹین کر لینا، بجلی فیسز دے دینا، یہ شو بزنس ہے. چاہے کام ہو نہ ہو، بجلی تو چلانی ہے، صاف صفائی تو رکھنی ہے، چیزوں کو انشورنس تو کرنا ہی کرنا ہے، مینٹین تو مشینیں خراب ہو جاتی ہیں، ٹھیک تو کرنا ہی ہے. تو بڑا مشکلات دیکھا ٹورزم میں آنیسٹلی اسپیکنگ.
अल्लाह का शुक्र है पिछले जुलाई से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम है, ठीक हो गया, टूरिस्ट फिर आना शुरू हो गया, एक भरोसा आ गया, उन टूरिस्ट में भी भरोसा आ गया जो हमें बदनाम किया गया था, वहाँ वो है ये है। मगर आज के दिन हमारे मीडिया वाले जब टूरिस्टों को पूछते हैं कि कश्मीर कैसा है तो वो कहते हैं जन्नत है, जन्नत है, बिल्कुल। कश्मीर के लोग कैसे हैं, इन जैसे लोग ही, इन जैसे मेहमान, हमारा दिल खुश हो जाता है। आज पता चलता है लोगों को क्या कश्मीर है, क्या कश्मीरियत है, या कश्मीर के लोग हैं। जहां तक वी आर द स्टेक होल्डर, ठीक, होटलियर है, हम कर्जे पर भी पैसा लाते हैं, बैंक से लेते हैं, बिल्कुल बैंक से लेते हैं, तो मगर नीयत साफ है सबों की, तो अल्लाह ने फिल फजल करते हैं। तो आज के दिन मैं मुबारक दे रहा हूँ आपको भी सारे, जिसमें देखिए शुक्रान करने अच्छी बात है, बिल्कुल। तो गवर्नमेंट ने, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी बड़ी मेहनत की। अच्छा, हाँ, प्रमोशन के लिए, प्रमोशन खुद गए, गुजरात गए, खुद गए बहुत सारी जगहों पर, नॉट हमारे स्टेक होल्डर, हमारे ट्रैवल एजेंट गए, हमारे होटलियर गए, हमारे जिनका भी ब्रेड एंड बटर इसके साथ है, वी हैव नो ऑप्शन। तो मगर अल्लाह ने उसमें कामयाबी दे दी, टूरिज्म वालों ने भी काम कर दिया, गवर्नमेंट ने भी मदद कर दिया, हम जरूर मानते हैं इस बात को। ठीक, तो देखिए ये जो है यहाँ, अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊंगा, अगर कश्मीर में कोई इंडस्ट्री है दैट इज द टूरिज्म इंडस्ट्री, टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर, ये चीज इंडस्ट्रीज इस पर सर्वाइव है। यस, टूरिज्म है, हॉर्टिकल्चर है, हैंडीक्राफ्ट, इतना ही हमारा है। अब टूरिज्म में जो स्पेशली इसमें जो हमारी एम्प्लॉयमेंट होती है वो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये बात इस वक्त अगर मैं आपको बताऊंगा 6 to 7 lakhs people are connected with this टूरिज्म इंडस्ट्री, इतना किसी में नहीं हो सकता है। और ये ऐसी इंडस्ट्री है, ये वो इंडस्ट्री नहीं है बराह रास्त होंगे 6 लाख, उससे ज्यादा बिल वास्ता है, मतलब बिल वास्ता, इनडायरेक्टली। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर मैं ये मानो नई इंडस्ट्री खोले उसको 6 साल लगेंगे, 5 साल, यही मैं गवर्नमेंट को कह रहा हूँ हमेशा। रेडीमेड इंडस्ट्री। मैं माफी चाहता हूँ मुश्ताक साहब, ये बात तसलसल तोड़ने के लिए मैं माजरत खा हूँ, और प्रोग्राम में कुछ एक जिम्मेदारियां हमारी होती है। एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता, आपकी इजाजत से लेना चाहेंगे एक वक्फा। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ चलता है एक छोटे से वक्फे का, मिलते हैं इस वक्फे के उस पार। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी मयसर करने के बाद पिछले 1 साल से वादी कश्मीर में ऐसे बेऔलाद जोड़ों को वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। वरदान IVF क्लिनिक पिछले 20 सालों से जालंधर में काम कर रहा है। उसके बाद एक सेंटर अब जो श्रीनगर में खोला है, उसमें तकरीबन 300 से ज्यादा ऐसे कपल्स जिनको औलाद नहीं थी अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिनकी शादी को 10-10, 15-15 साल हो गए थे, उनके घर में औलाद नहीं थी, वरदान से उन्होंने अपना इलाज कराया, आज उनके घर में खुशियां हैं। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जालंधर का, और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़वे इकट्ठे। अगर आप भी इस रहमत से महरूम हैं तो तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। याद रहे, वरदान की डॉक्टरों की टीम हर सोमवार, मंगलवार और बुधवार को IVF का खुसूसी कैंप मगरमल बाग श्रीनगर में मुनक्किद करेंगे। वादी का नामवर ज्वेलरी शॉप UR ज्वेलर्स, द प्राइड ऑफ शहरी खास, जहां पर प्योर गोल्ड, लेटेस्ट डिजाइनिंग गोल्ड सेट्स जेन्युइन कीमतों पर दस्तयाब है। तशरीफ लाइए UR ज्वेलर्स, काजी कदर, शराब कदर, नालामोर रोड, श्रीनगर। सेल नंबर 9541176450। हते कूचा टर्ट छक नीन, वह थावे हमेशा ख्याल। रानी, ऐ कोर्थे एमिस वैक्सीन? वैक्सीन तो क्या? ब्रुसेलोसिस बेमार निश बचन बापत मे बूज यह खतरनाक बेमार। यह कोसना बेमार यह हेकी चे डॉक्टर साहब बावत करित। वत सा डॉक्टर साहब मेनिस गो बचस ब्रुसेलोसिस खतर वैक्सीन यानी टीक लगावन। मगर ऐ खबर यह क्या
ना ना ब्रुसोलोसिस पजी खतरनाक बेमारी यम सत गव अडल्युक गसित हेकान अमुक मतलब गो अगर चानी गव यह बेमारी लज तमिस हेक न बच्चे जिवित अमे अलाव हेकि इंसानन मज त फैलित क्या छुक वनान तो कित पट बेमार गव हिंद दोध चन सत बेमार गव नजदीक शाह खालन वालन सत गव हिंद प्लासेंटा गलत तरीक संभालन सत मगर अम निश हेकियो तुह त तुहज गाव आसानी सान महफूज बनवित सिर्फ एक टीक लगावन सत भारत सरकारन मिशन आरोग्य पुष्पवस तहत यह वाद कोरमुत ज प्रेथ वेजी ब्रुसोलोसिस टीक लगावन यमे पत जानवरस यह पहचान टैग ती लगावन यम सत यह नन तुज जानवर ब्रुसोलोसिस टीक गोड़े लगावन आमुत अमे अलाव गछि यह बेमारी इन वालन 5 वरियन मज खत्म वाह तेल पकवा ब्रो वैक्सीन लगाओ 9 महीने से वन गछि से क्या अमिस गि वन पजी क्या मगर बाकी गम गामस क्या बन ब्रुसोलोसिस खतरनाक बेमारी यम सत तुज गाव इस्तिकाती हमल हेकि गसित हिफाजत ब्रुसोलोसिस नश बचाव पाई तोह इस्तदा ज तुम लगो पन्न जानवरन ब्रुसोलोसिस बापत टीक यह तुम नोत न अंद पे वातन प्रेथ अकिस शेच ज तिम त लगावन पन्न वसन ब्रुसोलोसिस टीक यम कथ थो ध्यान ज यह टीक गि नव सचन सत लगावन यून वलियो पको खुशहाल पगोस कुन ब्रुसोलोसिस टीक बलई सारनी हज। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे गेस्ट जो तशरीफ आवर है वो है डॉक्टर मुश्ताक अहमद चाया साहब, जो कि प्रेसिडेंट होटेलियर क्लब जम्मू एंड कश्मीर है। उनके साथ मजीद गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ चलता है अखबारात की सुर्खियां लेने का। तो मेरे पास ये अंग्रेजी रोजनामा है जिससे मैं ये सुर्खी ले रही हूँ। इंक्लूसिव ग्रोथ इज द अल्टीमेट गोल ऑफ गवर्नमेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर says significant steps taken to eliminate independence for timely implementation of projects in JNK। इसी अखबार से एक और सुर्खी ले रही हूँ जिसमें है ऑल JNK यूनिवर्सिटीज टू फुल्ली अडॉप्ट समर्थ ई-गवर्नेंस पोर्टल दिस ईयर। 148 कॉलेजेस वुड बी टेकन अप फॉर द पर्पस बाय एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज। जी मेरे पास उर्दू अखबार है, लिखते हैं कि दुनिया अब हिंदुस्तान की तरफ बड़े एतमाद से देख रही है। वजीर आजम मुल्क का अज़म है कि अगले 25 सालों में सुनहरे हिंदुस्तान की तामीर करेंगे। जी ये मेरे पास उर्दू रोजनामा है। गुलमर्ग, टंगमर्ग, पुलवामा और काजीगुंड के ऊपरी इलाकों में शदीद सालाबारी और तेज आंधी, फसलों और मेवा बागात को भारी नुकसान। मेरे पास अंग्रेजी अखबार है, लिखते हैं इन एडिकेसी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर वाज मेजर इम्पेडिमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी LG। एक और खबर इस अखबार से हम वी द पीपल के उन्वान से लेना चाहूँगा। ऑल्दो द कॉन्सेप्ट ऑफ ओल्ड एज होम्स हैज स्टार्टेड सरफेसिंग ड्यू टू द डिमिनिशिंग ऑफ द मॉरल वैल्यूज, येट द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एबहॉर इट इन कश्मीर। जी नफीसा, ये उर्दू रोजनामा से सुर्खी है। हदबंदी रिपोर्ट जारी करने के बाद असेंबली इलेक्शन की राह हमवार। अगले 6 से 8 माह में जम्मू कश्मीर में इंतखाबात मुतवक्का, कुछ रोज में होगी मीटिंग। मेरे पास अंग्रेजी अखबार है, लिखते हैं कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रीसेंट एडवांसेस इन बायोमेडिकल साइंसेज एंड रिजनरेटिव मेडिसिन हेल्ड एट स्कॉस्ट कश्मीर। जी अंग्रेजी रोजनामा से ये सुर्खी है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन JNK डिप्स टू 15.6% इन अप्रैल। अब आखिरी अखबार हम खेल के इस सफ़े से लेना चाहेंगे खबर कि एशियाई खेलों के लिए जम्मू कश्मीर के 5 खिलाड़ी नामजद। जी नफीसा। जी तो मुश्ताक साहब, आपसे हम बात कर रहे थे एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, तो आप उसी को अगर आप आगे 6 लाख लोग वगैरह, जैसा कि मैं ये कह रहा था कि दिस इज द ओनली इंडस्ट्री जहाँ जितने भी लोग, जितने भी आजकल हमारे बच्चे बेरोजगार है, ये एक इंडस्ट्री उसको संभाल सकती है। जिस तरह आज के दिन में सारे लोग बहुत बिजी हो गए हैं टूरिज्म के साथ, ठीक, जिसमें एक तो हालांकि टूरिज्म ने बहुत परेशानी, उन मुलाजिमों ने भी बहुत परेशानी झेली है, बिल्कुल, क्योंकि कभी कभार हम जब 4-4, 3-3 साल बहुत सी उन बेचारों को भी परेशानी होती है। आज के दिन मैं मुबारक दे रहा हूँ, आज हम उन्हीं लोगों को जितना उनकी तनख्वाह, चलो आज ज्यादा दे, 20% ज्यादा करो, वो करो, ये करो, तो ये वो इंडस्ट्री है जो जनरल लोगों को चलाती है। जनरल यहाँ के जो यूथ है उसको चलाने में बहुत ही कामयाब रहा है। और भी जो भी बाहर से
गेस्ट आता है, उसमें सिर्फ होटल वाला ही नहीं टैक्सी वाला है, बिल्कुल मार्केट है, शिकारे वाला है, सिलाज वाला है, कोडे वाला है, ये ओवरऑल बढ़ता है। और कश्मीर जैसी जगह जहां हमारे पास श्रीनगर है, गुलमर्ग है, पहलगाम है, सोनमर्ग है, यूसमर्ग है, बाकी डेस्टिनेशंस है, हर जगह जहां लोकल लोग इस काम के साथ लगे हुए हैं, सबों की रोजी रोटी इस वक्त चल रही है। इसमें एक और बात ये भी है कि बाकी चीजों की खपत भी बहुत, मतलब दूध की खपत ज्यादा, पानी की खपत, हर चीज का जितना भी इस वक्त दुकानदार भी हमारा आज के दिन में सब बिजी हैं। तो ये एक अच्छा अल्लाह का फजल है जिसको हमारे कश्मीर को जन्नत माना जाता है तो ये नेचुरल ही है सारा, अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी किसी ने ये तो सिर्फ बातें हैं ना, बाकी जो है जो कश्मीर है वो कश्मीरी है। हाँ, कश्मीर अब अल्लाह ने इतना बनाया है, यहाँ का हर एक एज टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ भी लोग जाते हैं वो कहते हैं और दिल से वो कहते हैं, जब हमारे लोग उनसे पूछते हैं, मीडिया पूछते हैं, हम पूछते हैं, नहीं वाकई ये जन्नत है। और यहाँ के लोग भी उस हिसाब से टूरिस्ट के साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं। अच्छा, उनके दिल में खैर कश्मीरी को तो दिल से ही मेहमान नवाज है। अगर मैंने चाय पी होगी या आपने पी होगी, ना मैं छोड़ूंगा ना आप छोड़ेंगे, नहीं पीनी ही पीनी है। तो वो ये जब देखते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, इतनी मेहमान नवाजी तो कहीं नहीं है। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है, टूरिज्म एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। और कश्मीर के लिए एक, अगर कश्मीर में गवर्नमेंट को चाहे ज्यादा टूरिज्म के ऊपर करना, काम जो अभी नहीं करते हैं उनको भी, और भी एक तो प्रमोशन का तो मैंने तारीफ किया हुआ है माशाअल्लाह, मगर और भी जो भी जरूरतें हैं वो उनको पूरी करनी चाहिए। एज एन बिजनेसमैन, एज एन एंटरप्रेन्योर, आपका विजन अल्हम्दुलिल्लाह शासन सेठा वसी। आप से अगर हम ये पूछना चाहेंगे 20 साल के बाद कश्मीर में टूरिज्म के हवाले से क्या क्या काम होने चाहिए, एडवेंचर टूरिज्म हो, स्पोर्ट्स टूरिज्म हो, या बाकी यम चीज़ यम बाकी जायन जैसे दुबई ही जाए या बाकी मॉरिशस जाए तक यम फैसिलिटीज अवेलेबल, उस हवाले से क्या क्या काम किया जा सकता है और कहाँ कहाँ क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे हम भी दुबई गए हैं, बिल्कुल दुबई उन्होंने क्या बनाया है, हालांकि एक छोटी सी जगह है हमारी कश्मीर, सहरा को क्या बनाया, क्या सहरा का बनाया है। आदमी कहता है कि क्या ये, जैसा कि बहरहाल मैं वो उम्मीद नहीं रखूंगा यहाँ के लिए, मगर कुछ न कुछ तो होना चाहिए। मैं स्विट्जरलैंड भी गया हूँ, मेरे हिसाब से अगर 0.000% यहाँ खर्च किया जाए, मुझे बताइए क्या किया है यहाँ आज तक गवर्नमेंट। आई एम सॉरी टू से, हालात भी ऐसे न थे, हालात 30 साल से तो खराब ही रहे थे, ये बात भी नहीं तो ये बात जरूरी माननी पड़ेगी। जैसे आपको दस्का लगा सरकार को भी, या जो इंतजामिया उनको भी उन्हीं चीजों में वो मुब्तला थे, वो सब काम करने। सही बात है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे क्या होना चाहिए इस आगे, आप जा चुके हैं, आपका विजन अच्छा है, वहां आपने देखा है, यहाँ क्या क्या हो सकता है? देखिए, यहाँ तो इस जैसी जगह ही कोई नहीं होगी सारी दुनिया में माशाअल्लाह, अगर थोड़ा बहुत या इसकी तरफ ध्यान दिया जाए, जैसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट को करना है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ के रोड्स, यहाँ के बहुत सारे अभी चीजें नहीं है जो बहुत जरूरी है। यहाँ से पहलगाम जाइए, रास्तों में कुछ पॉइंट बनाने पड़ेंगे बड़ा असल टूरिज्म को ये करने के लिए कहीं। हाँ बेशक, यहाँ से सोनमर्ग जाना है, उधर तक ये 2.5 घंटे लगते हैं। वो वॉशरूम्स बनने चाहिए, कुछ पिकनिक पॉइंट्स बनने चाहिए जो बन सकते हैं और बड़े कम कीमत में बनेंगे। इवन अगर वो हम जैसे स्टेक होल्डरों को कहें, होटलियर क्लब को कहें या बाकी होटल वालों को कहें कि हम जमीन दे दे, आप दे दो, तो वो भी तैयार है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ना, आफ्टर ऑल ये हमारा कश्मीर, हमारा, हम चाहते हैं दिन ब दिन ज्यादा अच्छा बन जाए। बिल्कुल। तो ये चीजें जो प्राइवेट को करना है वो तो करना ही करना है, और सबसे पहले ओपन माइंड इनको करना पड़ेगा। अच्छा। अभी ओपन माइंड नहीं है, ठीक ना आज तक रहा है। देखिए, मैं
हर जगह गया हूँ, मैंने टूरिज्म जो देखा है, चाहे वो हिंदुस्तान में चाहे आउटसाइड द कंट्री, वो सिर्फ दरियाओं पर है, सी पर है। हमारा भी माशाल्लाह डल है यहाँ बंदिश है। पुराने जमाने में होटल वोटल बनाए हैं, आज के दिन में उनको वहाँ बाथरूम नहीं बनाने, क्यों नहीं बनाने देते हैं? आजकल मैकेनिज्म है। जब वहाँ वो दुबई में समंदर में वो मशीनें लगा के वो जो इनका खतरा है यहाँ जी बाथरूम, यहाँ नहीं हो सकता है। आजकल तो वो टेक्नोलॉजी है, तो ऐसा ही होना चाहिए ना, वो लगाने के लोग तैयार है, इनको देना चाहिए। देखिए असली जगह जहाँ जिसकी बात आप कर रहे थे, जहाँ देहात में आप भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, तो कितनी जबरदस्त ही बुलवाड़, वहाँ अच्छे होटल्स बहुत है, किसी के पास बात कर क्यों नहीं जी, हमें नहीं बनाने देते हैं जी, 200 मीटर का बंद है, ठीक है, जो ग्रिल रखना है रख लीजिए, मगर जो बना हुआ है उनको दे दीजिए बनाने के लिए। ये एक नुकता तो हो गया हाईलाइट, वहीं युस कर्टिसी होटलियर क्लबच तिमन युस कर्टिसी यम वुचान बाकियन रियासतन मज या बैरूनी ममलिकन मज आउट ऑफ कर्टिसी की काम करान, होटलियर क्लब की क्या कर्टिसी होनी चाहिए? बे बिलखसूस अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कत करो, मतलब गुलमर्ग जैसी जाय ग्रीन सोरी, तत अगर होटल ये बनन, तथ मज तवाजुन जरूरत, होटलियर क्लब की तरफ से आप क्या देखते हो? नहीं, हमने गवर्नमेंट को भी यही सजेशन दे दी कि जनाब आप मत कुछ और बनाइए गुलमर्ग में। अच्छा, हाँ, मगर जो बना हुआ है उनको ठीक ठाक तो रख दीजिए, उनको इजाजत दे दीजिए, वो अपने पैसे लगा के इनसाइड विदाउट लेंथ हाइट एंड डायमेंशन, जो भी अंदर कमरे में यहाँ अच्छा सा अच्छा, ताकि टूरिस्ट आ जाए उसको एक अच्छी फैसिलिटी मिल जाए। इसमें गवर्नमेंट को ओपन माइंड रखना पड़ेगा। इसी तरह पहलगाम है, सोनमर्ग है, जहाँ भी है, एक अच्छी चीज जो टूरिस्ट आ जाए वो देखे कि मैं किसी जगह आया हूँ, यहाँ ये इतना खुदा ने तो मगर लोगों ने भी अच्छा रखा है। एक और मैं नुकता जो है मैं आपसे जानना चाहूँगा वो ये कि आपने बात की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की। अब जब हमने आपको यहाँ मदऊ किया तो हमने कुछ ट्रैवल एजेंट से बात की वगैरह कि कैसे काम, तो उनकी अक्सर ये शिकायत रही कि वह मैक्सिमम ये बड़ होटल्स या वगैरह तमो ऑलरेडी मेक माई ट्रिप या गो ओबीबोस पे पन होटल कनमत आसान, तो अच्छन तीस कम यहद तरफ कहीं, ये एक शिकायत है उनकी तरफ से, इस पे आपका क्या? मैं जरूर इस पर बात करूंगा। देखिए बेसिकली दुनिया बदल गई है, आज का जमाना टेक्नोलॉजी का जमाना है। ठीक, जो कोई मद्रास में रहता है वो मेरे ट्रैवल एजेंट को तो नहीं जानता है। ठीक, एक पोर्टल बने हैं, जैसा कि आपने मेक माई ट्रिप की बात या गो बीगो वगैरह, गो बीगो है, वो देखते हैं उधर से उनकी टेक्नोलॉजी में मेरा होटल रेडिसन श्रीनगर, वो उधर खोलते हैं, इसका रेट क्या है, इसका कमरा कैसा है, साइज क्या है, एवरीथिंग इज देयर, दे सिलेक्टेड फ्रॉम देयर। अच्छा, अब जहां तक हमारे ट्रैवल, ये इधर ही नहीं है, थ्रू कंट्री में आप मैक्सिमम, अब आपको जाना है बॉम्बे, आपको पहली बार आपको नहीं पता है, तो बट फैसिलिटी ये है, आप भी यही करेंगे ना। ठीक, ऐसी बात भी नहीं कि हमारे ट्रैवल एजेंट बेकार है। नो 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 नो, हम उनको टोटल एकोमोडेट करते हैं। ये भी एक जमात है जो सिर्फ हमारे कश्मीरी ट्रैवल एजेंट को, जिनको 50 साल का वास्ता है, वो चल रहे हैं, ग्रुप्स आ रहे हैं, माइसेस आ रहे हैं, वो वही डील करते हैं, उनके टैक्सियां लगती हैं, उनके एवरीथिंग इज देयर। तो ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन उनको हो गया है कि ये जो मेक माई ट्रिप है ये वर्ल्ड वाइड ट्रेंड है, वर्ल्ड वाइड ट्रेंड, इसमें तो हमारा कोई कसूर नहीं है। नाउ वी आर द स्टेक होल्डर, हमारा होटल है, कमरा है, मुझे मेक माई ट्रिप दिया और वो बुकिंग साहब आपका रेट है, ये कमरा पैसे हमने भर दिए आपके अकाउंट में, इसको कमरा दे दो। ठीक है, तो मुश्ताक साहब आपके साथ मजीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हुआ चलता है एक कमर्शियल का, एक वक्फे का। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद आपसे फिर मुलाकात करते हैं। वाडियो नावर ज्वेलरी दुकान, योर ज्वेलर्स, द प्राइड ऑफ शहरी खास।
یہ ملاوٹ ورائے سون بہترین ڈیزائن دستیاب خاص کر مناسب قیمتس پہ تشریف انیو یو آر جیولرز قاضی کدل سراب کدل نالما روڈ سری نگر سیل نمبر 9541176450. ویلکم بیک ناظرین. تو ہم گفتگو کر رہے ہیں آج مشتاق احمد چایا صاحب سے جو کہ ہے پریزیڈنٹ ہوٹلیئر کلب جموں اینڈ کشمیر کے. تو سر بات ہم کر رہے ہیں ہوٹلز کی. اگر ہم بات کریں ریٹس کی تو ریٹس ہمارے یہاں جو انہی ہوٹلز کی جو ہے کافی ہائی رہتی ہے ایز کمپیئر ٹو باقی اسٹیٹس کی ہماری کنٹری میں. تو یہ جو ہے یہ ڈفرینس جو ہے اس پر کتنی نظر رکھی جاتی ہے اور کیوں اتنی زیادہ ڈفرینس رہتی ہے؟ دیکھیے اس پر گورنمنٹ نے بھی ہمیں 2-3 میٹنگز کی ہے. ہر پروڈکٹ کا اپنا قیمت ہوتا ہے. جو اچھے ہوٹل جو جس قسم کے ہوٹل ہے یہ جس کی جتنی فیسلٹی ہوگی جتنا انفراسٹرکچر ہوگا. اب دیکھ لیجئے ماشاء اللہ اب ہمارے بھی کچھ ہوٹل یہاں اچھے ہائی اینڈ ہوٹل بنائے ہیں. انہوں نے بے پناہ پیسہ لگایا ہے. اس کے درجے میں آپ باقی جگہوں کے لے لیجئے. یہ ایسا نہیں ہے. پرسوں بھی میں نے کمشنر صاحب کو کہا, میں نے کہا راج ولاس تو 56,000 میں بکتا ہے. اب اگر ہمارا خیبر بھی 50,000 میں بک گیا تو وہ کیا بات ہے, کیا بات ہے. مگر یہ تو وہی بک جائے گا یا دوسرا کوئی تاج ہے للت ہے جو بھی اس لائق ہے. اب ہمارے ہوٹل ہے وہ اپنے حساب سے ہیں. یہ ایک کنفیوژن ڈالا گیا ہے کہ یہاں ریٹ یہ کنسیڈر نہیں کرتے ہیں. دیکھیے اب آپ کو پتہ ہی ہے 5 سال یہ میں نے لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے بھی مجھے یہ شکایت کی. اچھا ہاں تو ان سے بھی میں نے لیفٹیننٹ گورنر سے ملتے ہیں. دیکھیے بھائی تو میں نے ان سے بھی یہ بتا دے دیا کیا مسئلہ ہے کیا ہے. نو بڈی دیکھیے یہ ہمارا کام ہے. یہ ہمارے ہم کس طرح چاہیں گے کہ ہم یہاں پر نہیں ایسا کوئی نہیں کوئی ہوٹل والا نہیں کرے گا. اور جو خریدنے والے ہیں وہ ہم سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ آج پورٹلینڈ پہ وچھاں وغیرہ آج پورٹل میں دیکھ رہے ہیں کمپٹیشن کیا ہے کیا مسئلہ ہے. تو باقی یہ کچھ نہیں ہے. ایک یہ ہو گیا ہے دیکھو جی کشمیر میں آپ کو پتہ ہی ہے آئی ایم سوری ٹو سے یہاں تھوڑا بہت کچھ چلتا ہے. یہ بھی کوئی نہیں دیکھتا ہے 30 سال میں کیا ہوگا. ابھی میں اگر آپ کو بتا دوں صاحب ابھی صرف 8 مہینے ہو گئے ہوٹل انڈسٹری کو. بے شک جولائی سے آپ گن لیجئے 8 مہینے سے اب 30 سال کا یہ 5 سال کا 8 مہینے میں کیا نکلے گا. یہ بات جس کا بینک انٹرسٹ ہے وہ چالو ہے. آپ کے لیے کچھ کمنٹس ہمارے پاس آئے ہیں, میں یہ پڑھنا ضرور چاہوں گا کیونکہ ان کی محبت آپ تک. ڈالی ٹکو لکھتی ہے ارول سے دس از اے گریٹ انیشیٹو ٹو ویلکم سچ اے پرسنالٹیز لائک مسٹر ایم چایا مشتاق چایا بیکاز ہی از انسپریشن فار آل آف اس. ٹھیک ہے. غلام محمد لکھتے ہیں ویل سیڈ مشتاق صاحب گڈ سجیشن انسپائرنگ اس آل. بٹ منظور لکھتے السلام علیکم مشتاق چایا نام کیوں پڑا ہے اس کی تھوڑی وضاحت کیجیے گا. ٹھیک ہے اس پہ ہم بات کریں گے لیکن کچھ کمنٹس ہے. آج بہت پروگرام بہت اچھا لگا. مشتاق چایا کو ہماری طرف سے دعا اور پیار بھرا سلام آپ کے لیے. رفت ڈار لکھتی ہے, معاون پرویز لکھتے ہیں, فاروق احمد نوبوگ, میرال ملک لکھتے ہیں السلام علیکم نیاز بھائی گڈ مارننگ ٹیم کو. معاون پرویز نے لکھا ہے. غلام محمد درزی ہمیں لکھتے ہیں آسٹن یو ایس اے سے. دیکھیے مشتاق صاحب آپ یو ایس سے گئے ہوں گے لیکن آپ کی وجہ سے آپ کی وضاحت سے ہو رہا ہے. I am thankful to you. Otherwise, nobody knows me. نہیں ایسی بات چھوٹا ایک آدمی ہوں. نہیں ایسی بات تو ہے نہیں ماشاءاللہ. یہ تو ویسی بات رہی. میری طرف سے سبوں کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت سارا پیار بھرا تھا اس میں لیکن اب ہم سب کمنٹس پڑھ نہیں پاتے. I am so grateful of them. تو اتنا تو میں ہوں نہیں تو ان کا میں بہت ہی مشہور ہوں. انہوں نے تو اچھا ہوٹل انڈسٹریز کو اگر ہم دیکھیں گے ایک تو ہم نے پہلے بات کی کہ اس کم چیز پر سرکاری سطح پہ کریں. ہوٹل انڈسٹریز ایز کمپیئر ٹو یم بیرونی ریاستن میں بیرونی ممالکن مز ہوٹلز تمن کمپیرزنس مز کیا سن ہوٹل برابر تمہ معیارک آسان تم فیسلٹیز دِوان یم ٹورسٹ یور یوان تمن تم فیسلٹیز یہ ملان اگر ہے ملان تو کیا تم یا اس کم کام کرنے ضرورت ین والن 10-20 ورین مز. ایز پریزیڈنٹ ہوٹل کے حوالے سے یہ سوال ہے آپ کے لیے. دیکھیے ہم تاج کی بات کریں تاج تو ساری دنیا میں ہے. بالکل گویا
ताज का अपना एक ब्रांड स्टेटस है, ब्रांड है, स्टेटस है। उनका वही लंदन में भी होगा, वही बॉम्बे में भी होगा, वही दिल्ली में, वही यहाँ श्रीनगर में भी होना चाहिए। क्राल संग्रीत क्राल संग्रीत छुट्टी कहीं चार छुक न घाट छ दिवान बट दे हैव टू मेंटेन। अच्छा, रेडिसन इज द अमेरिकन कंपनी, उनके पास 1600 होटल है, उसमें श्रीनगर है, पहलगाम है, हमारा आईटीसी है, सारे वर्ल्ड में फॉर्चून ग्रुप ऑफ होटल, फॉर्चून नहीं आईटीसी यस, उनमें फॉर्चून है, उसमें बहुत सारे बहुत अच्छा है। ये कोलैबोरेशन लोग में करें ये क्यों होटल यारो, मतलब तो ही रेडिसन से करूं शायद गालिबन, या ऐसी मतलब टाटा के साथ वगैरह ताज है, तो ये कोलैबोरेशन से क्या फायदा होता है और ये क्यों किया जाता है? देखिए, ये बड़े ही एक्सपर्ट है होटल चलाने में। ठीक, अगर मुश्ताक चाया ग्रैंड मुमताज तो 10 बार कस्टमर सोचेगा मैं बुक करूं कि नहीं करूं, वहाँ ये खदमत हो जाए तो नहीं हो जाए। एक चीज है जो जिसके लिए हमने किया है, ये ब्रांड है, वो दे ट्रस्ट देम अच्छा मोर देन अस, तो और दे हैव द टेक्निक, ये नहीं खाली नाम है, नहीं उनको चलाना आता है। हमने भी सोचा कि हम भी सीखे, जब ये चला सकते हैं हम भी सीखे, आगे खुद ही चलाए तो, मगर कुछ तो सीख तो ले, तो जो हम सीख रहे हैं नो डाउट दे हैव गुड, मगर कश्मीरी खुद ही मेहमान नवाज है, उसमें खून में ही है, चाहे छोटा होटल है बड़ा हो, मुफ्त में भी दे सकता है, इस बेचारे को प्यार से दे सकता है। नहज नहज कहव तुथ कहव कज बने, तुथ सुन कज बने, वाजवान वान तम कत सरसी दुनिया मज, मगर उसके बगैर भी कश्मीरी जो ये सारे एक्सपर्ट है, इनके पास बिल्कुल एक्सपीरियंस प्रोफेशनलिज्म, बिल्कुल काबिल लोग हैं और चलाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, गेस्ट को सेटिस्फाई करके भेज देते हैं, सो दे आर कमिंग अगेन एंड अगेन। आपने बात की जो ये होटल्स है, जिनका नाम है, जिनका ब्रांड है, उनके पास ये सारे तौर तरीके हैं जो कि आप कह रहे हैं कि हम सीख रहे, हम भी चाह रहे हैं उस तर्ज पे आना, तो किस हद तक अभी उस तर्ज पर हम आ चुके हैं, या हमारे बाकी जो होटल्स है, और अभी कितना काम करना बाकी है, और कैसे वो इस तक पहुंच सकेंगे? देखिए, उम्र तक तो सीखना ही सीखना है, कब्र तक सीखना है, कब्र तक तो सीखना ही सीखना है, सीख रहे हैं, चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह रहमान कामयाबी भी दे रहा है अल्लाह। जैसा कि आपने कहा यहाँ रेट खामखा में कोई रेट दे देगा क्या, हर चीज की अपनी वैल्यू होती है, कद्र मंजिलत हर कुछ चीज। एक जो हम अगर मैं कोई सूट लाऊंगा लाख रुपए में भी मिलता है, 5,000 में भी मिलता है, तो अब किसकी क्या पसंद है, किसका क्या, खामखा में कोई नहीं देता है, कोई न देने वाला है, तो ये डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट। कैपेसिटी होटलन अगर इस टूरिज्म रश बढ़ाओ, ज्यादा खुद ज्यादा लोग, कैपेसिटी कितनी है होटल्स की, आपको क्या लगता है कि? देखिए, जहां तक इस वक्त का मसला है, हम तो बिल्कुल ठीक ठाक फीड कर रहे हैं, ठीक, इस वक्त कोई कमी नहीं है। अगर आज के दिन में लोग कह रहे हैं कि बहुत जबरदस्त है, फिर भी ये 80-90% होगा, नॉट द 100%। अब जब माशाअल्लाह जो हम उम्मीद रखते हैं कि आगे के लिए अच्छा होगा, गवर्नमेंट भी इसमें इनिशिएटिव, बस एक चीज कहूंगा, इस वक्त गवर्नमेंट चाहता है कि टूरिज्म का बढ़ावा हो जाए, तो क्योंकि उनको भी ये लग गया है एम्प्लॉयमेंट इसमें ठीक हो सकता है, मगर यहाँ लोग खुद भी होटल बना रहे हैं। आपको पता ही है कश्मीर में तो हमें ज्यादा बिजनेस एक्सपोजर्स नहीं है, तो ये हमें बड़ा दिखता है कि चलो जमीन का प्लॉट होटल बना दे दिया, वो कर दिया। सिर्फ हमें गवर्नमेंट से 2-3 शिकायतें हैं, तो हमें ये शिकायत नहीं है, हमारी अपील है, उनसे तवक्का है। उन्होंने नई स्कीम निकाले हैं, इंडस्ट्री पॉलिसी, जिसमें इसको भी रखा है, सर्विस इंडस्ट्री को भी। तो हमारी उनसे यही गुजारिश, मैं प्राइम मिनिस्टर को भी ये बता दे दिया, हम इसको अपने
लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नर साहब को सिन्हा भी, साहब को भी हाँ, बात है कि जो एग्जिस्टिंग है इनको भी इस दायरे में लाइए। ओके, ठीक। एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स जो है जो चल रहा है फिलहाल, उसको नए जो बनाने हैं उसमें तो 4 साल 5 साल 6 साल इसको चला दे दीजिए। जिनकी जरूरत है मामूली चीजें हैं, कुछ नहीं है, जो उनके लिए नथिंग, मगर होटल वाले के लिए बहुत बड़ी चीज है वो आगे चल सकता है, वो तरक्की कर सकता है। तो है तो सिंपल यही, मैंने गुलमर्ग की बात की, परमिशन दे दे तो अच्छा एक बना सकता है। वो बेचारा कल कस्टमर ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, ऑगमेंटेशन हम नो नथिंग नॉट अ सिंगल रूम, नॉट अ सिंगल रूम, अपलिफ्टमेंट ऑफ स्ट्रक्चर। यस उसकी तो मगर मुझे उम्मीद है वो कर रहे हैं, तो उसके लिए ये रहे थे सवालात आपके होटल से मुतल्लिक वगैरह। लेकिन जैसे कि हमारे कमेंट्स में भी आया कि यू आर इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी फॉर अस। अगर आप जवानों को, हमारे नौजवान सारा लोग हैं, लड़के हैं, लड़कियां, उन तक मैसेज पहुंचे, क्योंकि वन फ्यूचरिस्ट हुई, आपने तो अपना काम कर लिया, ठीक है, तो क्या मशवरा होगा आपका उनके लिए हर दायरे में? मैसेज उनके लिए, मैसेज हर दायरे में, जरूरी नहीं कि वो होटल ही बने। नहीं, ये जरूरी नहीं। देखिए, एक इंसान पहले सारी डेस्टिनी, बिल्कुल मैं ये आपको कहूंगा, अपना अपना नसीब। हाय कहते हैं ना कि जब खुदा देता है तो छप्पर फाड़ के देता, और मैंने अपने आंखों से देखा है। मुश्ताक चाय को छप्पर फाड़ के दिया है। यस क्या बात, अल्हम्दुलिल्लाह। टचवुड। तो मगर उसके साथ साथ खुलूस, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, अगर ये नहीं रखेगा कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। जो ये हमारा यूथ है, बच्चे हैं, दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। बिल्कुल, हमने कोई, हमारे पास वो नहीं थे, मैंने आपको बता दे दिया है, एक मामूली सा हिल टॉप होटल खोला, तो माशाअल्लाह खराब, ये ठीक है, सब अल्लाह के हाथ में है, मगर हमें भी जिम्मेवारी है ना, कोशिश नेक नीति से करो भाई, डेडिकेशन से करो, जिस काम को करना है उसको पूरा अंजाम दे दो। और नेक नीति, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दैट इज द ओनली पॉलिसी। इसी नुक्ते पर हम आपकी इजाजत चाहेंगे। हमें उम्मीद है कि आप जो यहाँ तशरीफ आवर हुए तो उस पर हम शुक्रगुजार है पूरी गुड मॉर्निंग JNK की टीम की ओर से, हमारी तरफ से और पूरी टीम की ओर से। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपको आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। जो हमारी मुलाकात आप थे मुश्ताक अहमद चाय साहब, उसकी जो बातें हैं वो बहुत मुस्तफीद है, हम इस्तिफादा करेंगे उन बातों से। और आप देखते रहिएगा प्रोग्राम हर दिन सुबह 8 बजे से 9 बजे। आज के प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर होता है, दीजिए इजाज़त। गुड मॉर्निंग JNK।